Hello students, welcome to SLAS Institute of English in collaboration with Pragyansh classes. Today I am going to explain you the third poem which is prescribed in your book Beehive for class ninth, and the title of the poem is Rain on the Roof, written by Coates Kinney. Coates Kinney was basically from New York, United States. It means that he was the poet from United States. And he was not only a poet, he was a lawyer also, he was a politician also, he was a journalist also, and he was a poet also. And to his credit, there are many poems, and especially he has worked as a poet for many journals also. So his poem was published in many journals also. So now I'm going to give you the theme of the poem and then I'll explain the poem. In this poem, Rain on the Roof, the poet is expressing the wonders of the nature, the extraordinary power of the nature that affects human beings. How it affects? It heals the mind, it heals the body, it heals the soul of the human beings. When the rain showers on the earth, so it becomes like a blessings to human beings. आप इस चीज को महसूस किए होंगे जब बारिश होती है, तो बारिश के दिनों में जब पहली बारिश खास करके होती है, तो उस समय वो एक चमत्कार जैसा चीज, एक आश्चर्य जैसा चीज प्रकृति का लगता है कि अरे बारिश आ गई अब, और उस बारिश से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर फील करने लगता है। जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, फ्लोरा फौना, सबके अंदर भी एक एनर्जी आ जाती है, एक पावर आ जाता है, और उससे आदमी का जो दिमाग है, आदमी का जो शरीर है, आदमी की जो आत्मा है, बिल्कुल संतुष्ट हो जाती है। और ऐसा मान सकते हैं कि ये जो शावरिंग ऑफ वाटर है, इट एक्ट्स लाइक ब्लेसिंग्स, वो आशीर्वाद की तरफ हो जाता है, जिससे कि आदमी संतुष्ट होता है, आदमी जो है खिल उठता है, आदमी के अंदर ताजगी आ जाती है। यू कैन से इट soothes the people, the human beings. So now I'm going to explain the poem. There are 3 stanzas in this poem, and each and every stanza is of 8 lines. So I'm explaining, but before explaining, there is something written in the box. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? जब आसमान से काले बादल, या आप कह सकते हो कि आसमान जब काले बादलों से ढक जाता है और बारिश शुरू हो जाती है, बरसात शुरू हो जाती है, तो क्या कभी अपने छत से, अपने रूफ से जो हल्की हल्की मधुर सी बरसात की जो धुन सुनाई देती है, उसको महसूस किया? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? और जब प्रकृति की इस मधुर सी संगीत को, मेलोडी बोलता है, मधुर सी संगीत को जब आप सुनते हैं, तो आपके मन में कौन सा विचार, कौन सी थॉट बनते हैं, कौन सा विचार जागृत होता है, उत्पन्न होता है? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. अब इस कविता को पढ़ना है और पता लगाना है कि कवि जो है, जो पोएट है, वो बरसात की आवाज सुनते समय किस चीज का सपना उसके दिमाग में आया, किस चीज को का सपना वो ले रहा था। तो यहां पर कवि ने, यानी कि कोट्स किने ने, वो एक्सप्लेन किया है कि when it was raining, so how he was feeling and what was the dream coming to his mind when the shower of the rain was falling on the roof of his house.
So the first stanza, when the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब यहाँ फर्स्ट स्टेंजा में ये पता चल रहा है कि पोएट जो है अपने घर के अंदर में है और अपने खाट पे अपने बिस्तर पे वो है और वहां से वो पानी की जो बूंद बारिश जो है बरसात जो है जो छत पे हो रही है उसको वो महसूस कर रहा है। तो यहां पर ह्यूमिड शैडोज एक आया है। ह्यूमिड शैडोज का मतलब होता है ब्लैक क्लाउड्स जिसमें ह्यूमिडिटी होते हैं, जिसमें नमी होती है। हॉवरिंग का मतलब होता है चारों तरफ मंडराना। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स बोलता है कि ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। स्टारी स्फीयर्स का मतलब हो गया कि नाइट स्काई फुल ऑफ स्टार्स। स्टारी का मतलब फुल ऑफ स्टार्स। एंड द मेलंकली डार्कनेस, और मेलंकली का मतलब होता है तनाव, उदासीनता, मेंटल डिप्रेशन कर सकते हो। जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, और जेंटली पोलाइटली, ऐसा वो बता रहा है यानी कि जब काली नमी वाले जो बादल हैं तारों से भरे हुए आकाश में चारों ओर मंडरा रहे हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres, जब काले नमी वाले जो बादल हैं तारों से भरे आकाश में चारों ओर मंडरा रहे हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस, और जो उदासीन अंधेरा है, जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, वह क्या करती है बहुत ही पोलाइटली विनम्रता से बारिश के रूप में आंसू बहा करके रो रहा होता है। What a bliss to press the pillow. What a bliss to press the pillow. अब यहां पर पोएट कहता है कि उस समय में जब हम अपने बिस्तर पर होते हैं तो उस समय जो तकिया होता है उसको दबाते हुए, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, जिसमें कि कॉटेज में अपनी कुटिया के अंदर में जो शयन कक्ष होते हैं, जो कमरा होता है, बेडरूम होता है, उसमें लेट करके, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो कि हमारे ऊपर में यानी कि छत पर पानी गिरती है। यानी कि इसका पूरा मतलब ये हुआ कि जब काले नमी वाले बादल तारों से भरे हुए आकाश में चारों ओर मंडराते रहते हैं और उदासीन जो अंधेरा है वह बड़ी विनम्रता के साथ बारिश के रूप में, बरसात के रूप में आंसू बहाकर रो रहा होता है। यानी कि जो क्योंकि रात का दृश्य है तो अंधकार जो है वह उदासीन हो उठता है, क्योंकि अंधेरे में तो कुछ दिखता नहीं, तो वो ऐसे भी उदासीन जैसा होता है। और आंसू की तुलना की गई है बारिश से, तो आंसू बह रहा है, ऐसा लगता है कि उदासीन रात में आंसू बह रहे हैं बारिश के रूप में। और पोएट जो है एक अपने रूम में, अपने घर के कुटिया के अपने रूम में वह लेटा हुआ है और सिर के ऊपर छत पे जो बारिश की टपटपाहट की आवाज जो सुनाई दे रही है, तो वह तकिया जो लिया हुआ है उसको दबाते हुए कितना आनंद से वो सुन रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ का ये मीनिंग हुआ। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter on the rain upon the roof. अब बोलता है कि एवरी टिंकल, टिंकल का मतलब था शॉर्ट लाइट, छोटी छोटी घंटी जैसी आवाज, शॉर्ट लाइट ऑन द शिंगल्स। शिंगल्स का मतलब होता है जो रूफ के आगे जो लकड़ी के जो बॉर्डर बने हुए होते हैं, उसमें जो घंटियां जैसी छोटी छोटी टिंकल्स जैसी आवाज आती है, वो जब गूंजती है, इको करती है, तो जैसा लगता है वो दिल में आ रही है। यानी कि जब बारिश की बूंदें लकड़ी के जो रॉड जैसे लगे होते हैं या पट्टी जैसे लगे होते हैं या आयताकार टाइल पर गिरती हैं, तब जो हल्की हल्की जो घंटियों जैसी आवाज आती है वो दिल में एक इको, एक गूंज पैदा कर देती है। यानी कि बारिश की बूंदें जब लकड़ियों के पट्टियों पे से गिरती हुई और वह
हल्की हल्की घंटियों जैसी आवाज करते हुए वो जब गिरती है जमीन पे तो या छत पे, तो उससे जो गूंज होती है वो क्या होती है, जैसे दिल में समा जाती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और उसी समय हजारों सपने जैसी फैंसीज, सपने मतलब फैंसीज मतलब सपने, और वो क्या करें, सपने जैसी जो तरंगे हैं वो क्या करती हैं, अपना काम शुरू कर देती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, अपना कार्य शुरू कर देती हैं और उसमें मस्त हो जाती हैं, लीन हो जाती हैं। यहां पे कवि ने एक सपना जैसा चीज को अपने मन में लिया है। जैसे बारिश जब होती है ना तो मन में बहुत सारे सपने बनते हैं कि काश ऐसा होता वैसा होता, तो बस बारिश की बूंदों के साथ एक सपना जोड़ा है। और बोलता है क्या, एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और हजारों यादें जो है इस तरीके से आ जाती हैं कि वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूव, और ऐसा लगता है कि जैसे हवा में कोई धागे बुने जा रहे हैं। यानी कि ढेर सारे मन में विचार आने लगते हैं, घूमने लगते हैं चारों तरफ, वीविंग होने लगता है, जैसे लगता है कोई विचारों को, सपनों को बुन रहा हो। और सिर्फ कैसे, बारिश की जो अंधेरी रात में, तारों से भरी हुई अंधेरी उदासीन रात में जब बारिश की बूंदों की पटपट आवाज आती है और घंटियों जैसी गूंज वाली आवाज आती है, तो पोएट के मन में खटिया पर अपने लेटे लेटे, बिस्तर पर लेटे लेटे अपने पिलो जो है तकिए को दबाते दबाते ऐसे सपने जैसे विचार चारों तरफ से घेर लेते हैं, और वो ऐसा लगता है जैसे वो विचारों को बून रहा हो। As I listen to the patter of the rain upon the roof, और जैसा कि मैं पटपट की जो आवाज है छत पर जो आ रही है बारिश को, उसको मैं सुनता हूं और ऐसे ही ख्वाबों में डूब जाता हूं। यहाँ पर फैंसीज वर्ड आ गया, रिकलेक्शंस वर्ड आया। रिकलेक्शन मतलब फिर से याद करना, और किस चीज को याद करना, अपनी यादगार को। वूफ का मतलब होता है कि कोई चीज को बूनना, है ना। तो ये चीजें हो रही हैं। अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ पर। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अभी तक तो पोएट जो है वह अपने सपने में था, अपने धुन में था, अपनी यादों के अपनी ख्यालों के धुन में था, और वह बुन रहा था और उसमें मदमस्त था। लेकिन अभी अचानक, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अचानक उसके सपने में जब लीन है तो उसकी मां की स्मृति आ जाती है। और एज शी यूज्ड इन इयर्स अगोन, अब यहां पर एक चीज आपको याद करना है, मां को याद करने का मतलब सपनों में, क्योंकि उसकी, इस पोएट की मां अब नहीं रही, अब मां की भी स्मृति आ जाती है उसको। तो कवि जो है सपने में तो लीन है, लेकिन अब कह रहा है कि अब वह अपनी जो मां है वो स्मृति में जो आ जाती है, जो खो गई है। एज शी यूज्ड इन इयर्स अगोन, जो बीते हुए वर्ष की भांति उसकी मां जो है उसके स्मृति में कभी होती थी, जब रोज वो मां के साथ होता था, मां के साथ सारी एक्टिविटीज करता था। लेकिन आज उसकी मां नहीं है, तो वह सपनों में उस बारिश के दिनों में वह मां की भी स्मृति को भी याद करता है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और वह अपने प्रिय उस सपने को बनाने वाले को, जो कि स्नेह की वर्षा अर्थात सम्मान देने के लिए आती है, अब वह बारिश को कैसे देख रहा है, वह बारिश को देख रहा है कि वह बारिश और कोई नहीं है, शायद वह मेरी मां का स्नेह है, शायद वह मेरी मां का डार्लिंग ड्रीमर्स है, ऐसा वो सोचता है। यानी कि वो सोचता है कि आज ये बारिश वह स्नेह की बारिश है, दुखदाई नहीं है। वह मां जैसे हम लोग को स्नेह देती है, सम्मान देती है, शायद वैसे बारिश के रूप में आई है और मेरे सपने में भी आई है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, फॉन्ड का मतलब होता है प्रेम, प्रीत, स्नेह। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है नॉइज ऑफ द रेन, यहां पर बार बार रिपीट हो रहा है ना पोएम में। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो उस लकड़ी के पट्टी पर गिर रहा है शिंगल्स पे, बाय द पैटर ऑफ द रेन। अब पोएट कहता है कि अब याद करता है कि बोलता है ना शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, यानी कि वह याद करके वह बोलता है कि और वह सूर्य निकलने के समय जो गोधली होता है तक उन्हें छोड़कर पहले ही वापस चली गई, यानी कि सूरज निकलने से पहले वह वापस चली गई और रात्रि में बारिश के रूप में आई है। अब कवि को यहां आश्चर्य होता है, ओ
बोलता है ना, ओ एक्सक्लेमेशन मार्क, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। और वह आश्चर्य में कहता है कि मैं अपनी माँ की स्नेह भरी जो रूप है, दृष्टि है, उसको अनुभव कर रहा हूं। लुक, लुक बोलता है, दृष्टि, उसको अनुभव कर रहा हूं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और ज्यों ही वह इस बारिश की पटपटाहट को सुनता है, रिफ्रेन मतलब लगातार बारिश की पटपटाहट को सुनता है, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल, जो बारिश के द्वारा वो लकड़ी के ऊपर पटपटाहट की आवाज के साथ गिरती है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, और उस पटपटाहट, जो बारिश की पटपटाहट है, उसको सुनता है, तो क्या करता है, वह प्रसन्नता पूर्वक, उसको लगता है कि शायद ये पानी जो गिर रही है वह एक नृत्य जैसा है, अर्थात वह खेल रही है। और कवि को बहुत आनंद आता है, कवि को लगता है कि आज माँ हमारे साथ बारिश के रूप में खेल रही है। तो यहाँ तीनों स्टैंजा में तीन तरह के सिचुएशंस को दिखाया गया है, और लास्ट सिचुएशंस बहुत ही तुमको सिंपैथेटिक लगता है, क्योंकि वह अपने माँ को मेमोराइज करता है, और उसको देखता है कि कैसे माँ जो है उसको स्लीप में भी आ जाती है। वो तो सुबह में आती है और शाम में चली जाती है, लेकिन बारिश के रूप में वह आती है, और म्यूजिक के रूप में आती है, जहाँ की पटपट की आवाज सुनाई देती है, और उसमें लगता है कि शायद वह नृत्य कर रही हो और हमको खुशी दे रही हो। तो तीनों स्टैंजा अपने आप में बहुत ही टची है। और इसमें क्या देखें हम कि ओवरऑल द एंड इज लाइक दिस, एंड इज लाइक दिस, कि हमको ये बारिश जो है, जो पृथ्वी पर आती है, वह इट इज एक्टिंग लाइक, दैट रेन इज एक्टिंग लाइक द showers of blessings. So this is the explanation of this poem. Okay, goodbye, thank you.